welcome to today's session. I would like to introduce today's presenter, Mr. Kishan Revalia, who will be taking about understanding one's responsibility as a global responsible citizen. Mr. Kishan is one of the best speakers who has successfully guided 16,000 plus students for English and government exams like GPSC, UPSC, ASI, STAT, and PSI, and many more. Trained 1,800 plus teachers and 1,900 plus corporate employees in various schools and companies in Gujarat. So, I am very pleased to welcome Mr. Kishan Revalia for presenting today's webinar. Yeah, thank you so much. Welcome, sir. Thank you so much. Yes, you can start, sir. Okay. First of all, good morning, everyone. I guess everyone is getting my voice, right? Everyone is getting. Yes, sir. Yes, sir. You are audible. Okay. Now, please, would you give me the chance to represent my screen as well? Hello. Yeah. Everybody is hearing me? Yes. Everybody is hearing me? You present your screen. Okay, not a problem. Okay, I hope everybody is fit and fine. First of all, good morning, everyone. This is Kishan Revalia, as Mrs. Surve introduced me. First of all, I would like to thank Oral University who gave me such a golden opportunity to share some ideas, some points with you guys. As well as I would like to thank Mrs. Surve as well, who supported me, who called me up, who told me before 1 month that would you like to share some ideas with our Oral University. Thereafter, I would like to thank each and every students who joined this seminar, or you can say webinar. Like I would like to thank everyone who give their time today, because nowadays time is very important. As you know, pandemic is everywhere. But I hope you will taking care of yourself, your family, and entire world. So without taking much time, let's start today's seminar. First of all, I would like to tell you, like I am a lecturer, I am a speaker, as well as I train teachers as well, as Mrs. Surve introduced. But today I'm gonna take this presentation, or you can say webinar, with one concept. I believe in one concept, and that is learn with fun. I don't believe in typical stereotype like learning, reading. No. Today we will gonna something crazy something today, in which you will also get some ideas, new learning as well. So before starting, I would like to share two lines for you guys. Each and every students, please listen to me carefully. And that line is, हम लोग हिंदी में बात करेंगे. वो लाइन कुछ ऐसी है, देखो अब सुनिए मेरे मुझसे. That is, पढ़े लिखे होने से अच्छा है पढ़ते लिखते रहना. पढ़े लिखे होने से अच्छा है पढ़ते लिखते रहना, क्योंकि अनपढ़ वो नहीं जो पढ़ना नहीं जानता, लेकिन अनपढ़ वो है जो कभी सीखना नहीं चाहता. पढ़े लिखे होने से अच्छा है पढ़ते लिखते रहना, अनपढ़ वो नहीं जो पढ़ना नहीं जानता, अनपढ़ वो है जो कुछ सीखना नहीं चाहता. अगर ऐसे ही पढ़े रहोगे तो आगे जाके और पढ़ेगी. पढ़े लिखे होने से अच्छा है पढ़ते लिखते रहना. With this positive note, let's start our presentation. Okay, guys. Now I am sharing my screen with you. If possible, I am requesting you all the students. When I start my presentation, please make sure you are using your phone on the horizontal line, so you can get perfect idea, or you can view total screen. So let's start our presentation. Just a minute. Okay, I hope everyone is getting my screen, right?
I cannot hear you, but I hope that you will get my points. No, Okay. sir, just a minute. Just a minute. Not a problem. हाँ सर, आप स्क्रीन प्रेजेंट कर रहे हो? Yes. हाँ सर. Okay. So everyone is getting the screen? Hello? Yes sir. Yes. Okay, not a problem. Okay, students. So let's start. Today's our webinar on topic that already you have got the point. That is yes, that is you can see on the screen. If possible, आपका जो मोबाइल है उसमें रोटेशन ऑन करके अपना मोबाइल पूरा घुमा के देखना तो आपको अच्छे से दिख पाएगा. So let's start our topic, and that is understanding one's responsibility as a global responsible citizen. Okay, guys. First of all, in your mind, when you listen this topic like global responsible citizen, it's a very big word, no? As a student of diploma, you might be thinking like it's a very difficult or it's like a very stereotype, but no. I make it very easy to understand. I make it very, like simple to understand. So let's start today's topic, that is global responsible citizen. I tried my best. I also covered many topics from UN as well. You can see on your screen that is a message from UNESCO, that is United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. So let's start today our topic. First of all, I would like to ask you, whenever you listen, like global responsible citizen, what do you think? What is that? Who is global responsible citizen? Whenever you listen this word, you might be thinking, what is that? So let me give you some idea about global responsible citizen. Who is he? What are the criteria? What are the responsibility of him or her? Let's start. Okay, as you know, like who is global citizen? So do you think so? Like who travels, who speaks different languages, or who do charity, or who donate to the people? No, guys. A global citizen is not only travel, speaks different languages, or do charity, but global means, let's identify each and every word with detail. Global means, sometimes we hear global word, so we think that global means world. If you talk about global means entire world, but here when we cover this topic as a global responsible citizen, here we understand global means understand all the cultures of world. It means not only you have to respect your culture or your society, but also you need to respect each and every region of the world. For example, your society, your village or your city, and after your country as well as other country as well. Let me give you a very simple example for this. Here I noted, for example, Swami Vivekananda. Like everyone knows Swami Vivekananda, right? Why I am putting this example? Because you can understand very easily. You might be knowing about Swami Vivekananda. आपको पता होगा स्वामी विवेकानंद ने 11 सितंबर 1893 को यूएसए में शिकागो सिटी में अपना एक लेक्चर दिया था, जो पूरे विश्व में बहुत ही फेमस हुआ था. मैं यहाँ पे उनकी क्यों बात कर रहा हूं वो भी मैं आपको बताऊंगा. बिकॉज वहां पे ऑलमोस्ट, गाइस लिसन टू मी केयरफुली, वहां पे ऑलमोस्ट 7,000 प्लस लोग वो सुनने के लिए आए थे, और 1600 लोग सिर्फ स्पीकर थे, क्योंकि वो जो सभा थी वो पूरे 7 दिन चलने वाली थी, और उनमें से इंडिया में से गए थे स्वामी विवेकानंद. I am talking about global. What is global all about? So whenever Swami Vivekananda got his turn to speak, Swami Vivekananda just stood up, then after went to this mic and very humbly उन्होंने बोला, उन्होंने बहुत अच्छे से बहुत शांति से बोला कि मेरे प्यारे सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका विथ सैल्यूटेशन. इट मीन्स जब भी उन्होंने बोला तो ऐसा नहीं बोला कि लेडीज एंड जेंटलमैन, एवरी स्पीकर कम्स एंड जस्ट स्पीक लेडीज एंड जेंटलमैन, बट विवेकानंद ने बोला
मेरे प्यारे, मेरे लाइक डियर sisters and brothers of America. Not only India, but also he covered America as a part of family. So what I want to say is, if Swami Vivekananda also understood in 1893 that we should cover world as a family, और हमारी जो संस्कृति है, like we need to cover each and everyone. आप जानते हो कि caring is sharing. So global means understanding the culture of world. Then after responsible. आप लोगों ने सभी ने सुना होगा, हमारे पेरेंट्स है, हमारे फ्रेंड्स है, फिर मोस्ट प्रोबेबली जो लेक्चरर है वो हमें कई बार बोलते हैं कि बी रिस्पॉन्सिबल, व्हाई आर यू इररिस्पॉन्सिबल। फिर आप तो अभी कोई गलती कर दी हमने तो बोलते खुद तो रिस्पॉन्सिबल हो जा भाई, खुद तो रिस्पॉन्सिबल हो जा। तो व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल? लेट मी गिव यू आइडिया। रिस्पॉन्सिबल मीन्स अ सिटीजन दैट बिलीव्स देयर इज अ वर्ल्ड बियॉन्ड अस। इट मीन्स, लेट मी सिंप्लीफाई इट। अगर आप पारुल यूनिवर्सिटी में आपका जो कैंपस है वहां पे आपने एंटर किया, फॉर एग्जांपल आपके हाथ में कोई बाइक है या फिर आपके हाथ में कोई स्कूटर है, आप वहां पे एंटर हुए, आपने देखा कि पूरा पार्किंग है वो फुल ऑफ लाइक व्हीकल्स है। देन आफ्टर यू थॉट लाइक लेट मी पार्क हियर, देयर इज सम गैप बिटवीन टू बाइक, देन यू एंटर योर स्कूटर और योर बाइक विद दैट गैप। बट व्हाट हैपन, आपने देखा कि अगर मैं यहाँ पे बाइक रखूंगा तो मेरे जो आगे वाले हैं, जो भी जिन्होंने भी पार्क किया है, वो शायद ना निकल पाए, या अगर वो निकलना चाहते हैं तो शायद उनको प्रॉब्लम होगा। फिर हम क्या करते हैं, गाड़ी को लॉक भी कर देते हैं। तो उससे क्या होगा, जब भी वो बंदा जिन्होंने हमारे आगे बाइक पार्क की है उनको प्रॉब्लम होगा। देन आफ्टर ही नीड टू फाइंड आउट सम अदर वेज टू गेट आउट ऑफ दिस। तो क्या होगा उस टाइम, अगर आप गाड़ी पार्क कर रहे हो और आप थोड़ा सा मतलब सोचते हो कि यहाँ पे मेरी गाड़ी मैं पार्क कर रहा हूं, मेरे बाजू वाले को, मेरे आगे वाले को या फिर मेरे पीछे वाले को गाड़ी निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी, इट इज ऑल्सो मीन्स दैट यू आर रिस्पॉन्सिबल। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बिग एस्पेक्ट ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट आई एम टॉकिंग अबाउट स्मॉल, बिकॉज स्मॉल थिंग्स ऑलवेज मेक डिफरेंस। सो रिस्पॉन्सिबल मीन्स यू आर थिंकिंग देयर इज अ वर्ल्ड बियॉन्ड अस एज वेल। क्योंकि हमें बोलते हैं ना कि सेल्फिश नहीं होना चाहिए। We need to share everything with everyone because sharing is caring. Today's punchline is sharing is caring because global means we need to cover everyone. Then after comes citizen. What is citizen? A member of a country who owes loyalty to the government of that particular country. Let me give you idea. Citizen means, मेरे शब्दों में अगर मैं बोलूं तो ऐसा बंदा जो समझता है कि मैं अपने फैमिली की तरफ, मैं अपने फ्रेंड्स के तरफ, मैं अपने कॉलेज की तरफ, या फिर मैं पूरे इंडिया की तरफ, मेरी जो कंट्री है उनकी तरफ मैं लॉयल रहूं, मैं ऑनेस्ट रहूं, या फिर मैं पूरा का पूरा रिस्पॉन्सिबल रहूं, जहां पे मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए वो मुझे आइडिया है। कभी कभी क्या होता है, हम अपने ग्रोथ करने में या हमें आगे बढ़ने के लिए कई बार हम कुछ लोगों को पीछे छोड़ जाते हैं या कुछ चीटिंग वगैरह करते हैं। बट अ लॉयल सिटीजन मीन्स अ पर्सन who do each and every activity with honesty and loyalty. Very recent example, I also noted that you might be noticing, for example, Sonu Sood. स्टूडेंट्स, आप सब लोग जानते हो कि अभी हम कुछ पूरे 6 माह से घर पे ही पढ़ाई कर रहे हैं, ऑनलाइन वेबिनार हो रहे हैं, लेक्चर्स हो रहे हैं, या फिर पढ़ाई पूरी ऑनलाइन हो रही है जस्ट बिकॉज ऑफ कोरोना पेंडेमिक। सो इन दिस कंडीशन यू माइट बी नोइंग लाइक मार्च मंथ में या अप्रैल मंथ में इट्स वेरी क्रिटिकल। आपने शायद देखा ही होगा कितने सारे लोग हैं जो बड़ौदा में, जो मुंबई में, या ऐसे कहीं कोने में जो बेचारे पूरे परेशान हो गए थे। उन लोगों को घर पे जाना था लेकिन वो घर नहीं जा पा रहे थे, उनको खाने की प्रॉब्लम हो रही थी, उनको धंधे की प्रॉब्लम हो रही थी, एक भी पैसा नहीं बचा था, लेकिन सर्वाइव करना मुश्किल हो गया था। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको मरने की नौबत आ गई थी। लेकिन ऐसे वक्त में कौन आगे आया? आप लोग सब जानते हो, सोनू सूद आगे आया, अपने पैसों से अपनी टीम बनाई, अपने पैसों से उन्हें बस की अरेंजमेंट की, अपने पैसों से अपनी पूरी टीम की लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके ऐसे सभी बंदों को अपने घर पहुंचाया। और आपने देखा होगा फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या सारे सोशल नेटवर्किंग पे जहां पे सोनू सूद पूरे छा चुके थे। अब कोई भी लाइक न्यूज़पेपर ले लो, आप कोई भी मीडिया ले लो, या कोई भी आप सोशल
सोशल व्हाट वी कैन से कवरेज ले लो, सारी की सारी जगह पे सोनू सूद छाए हुए थे, बिकॉज ही केम आउट as a loyal citizen of India and he helped out each and every member of the country. Not only Mumbai, but he also, he has also taken care of each and every corner of the India. So this is why Sonu Sood recently he received a humanitarian award by UNDP. What is UNDP? हमारा जो सेमिनार है आज का वो पूरा डिपेंड करता है यूनेस्को ऊपर या फिर यूनाइटेड नेशंस ऊपर. यूएनडीपी मींस यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम. इट्स अ ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन विच वर्क फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट. उन्होंने जाके लास्ट 28 सितंबर 2020 को सोनू सूद को एक ह्यूमैनिटेरियन का अवार्ड दिया एंड दैट इज अ बिग थिंग. आपको जान के शायद खुशी होगी कि दुनिया में बहुत ऐसे कम लोग हैं जिन्होंने ये अवार्ड पाया है. आई वुड लाइक टू गिव यू एग्जांपल एज वेल. हमारे देश में सोनू सूद है, फिर आप शायद जानते हो कि अमेरिका में एंजेलिना जोली, इट्स अ वेरी फेमस एक्टर. देन आफ्टर लियोनार्डो डिकैप्रियो, यू माइट बी नोइंग द फिल्म टाइटैनिक, उन्होंने जो हीरो है उन्होंने भी ये अवार्ड पाया है. तो ऐसे बहुत कम लोग हैं जो आगे आके खुद मेहनत करके दूसरे लोगों की मदद की है. Guys, I want to tell you in short, global means taking care of everyone. Responsible means he is responsible each and every action of him or her. And last, citizen means who is a loyal and honest. So we're gonna talk about global responsible citizen. Might be you are thinking like, what is all about? Because we are not Sonu Sood, we are not Angelina Jolie, or we are not Leonardo DiCaprio, but we are students. So as students, what you can do that we can also talk at the end of the PPT. Okay, let's move further. As you know, guys, you all are diploma students. You just passed out 10th and then you started your diploma. अब आपको शायद पता होगा अभी का जो वक्त है 2020, ऐसा कहा जाता है, आप देखना गूगल में भी लिखा है कि सालों के बाद या हजारों वर्षों के बाद ऐसा वक्त आया है जो ना पहले कभी था ना आगे कभी होगा. बिकॉज वर्ल्ड इज गेटिंग क्लोजर देन एवर बिफोर. मतलब पहले लोगों को एक चिट्ठी भी भेजनी थी अपने रिलेटिव्स को, तो आज वो भेजते थे तो 10 दिन बाद उनको मिलती थी. अगर आपको अमेरिका पे कुछ भेजना हो तो आज आप भेजोगे तो उसको 3-4 मंथ के बाद मिलता था. ऐसा भी एक वक्त था. लेकिन आज देखो दुनिया के कोई भी कोने में आप जस्ट क्लिक करते हो और वहां पे ईमेल मिल जाता है. तो इससे बेनिफिट नो, आप ऐसे वक्त में जी रहे हो जहां पे एवरीथिंग इज फास्ट. यू कैन ग्रो लाइक रैपिडली. सो वर्ल्ड इज गेटिंग क्लोजर देन एवर बिफोर विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी. तो अभी तो हमारे पास वक्त है जहां पे हम ग्रो कर सके, जहां पे हम अपनी हेल्प कर सके, अपनी हमारे फैमिली की हेल्प कर सके, और साथ में हमारी जो कंट्री है उनको भी हम डेवलप कर सके. सो दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस टाइम. So let's move further. But what is the problem? As you know, टेक्नोलॉजी आने के साथ कहीं प्रॉब्लम्स भी आए हैं. आपको शायद पता होगा हमारे 10th में एक ऐसे आता था, आपने शायद पढ़ा होगा, टेक्नोलॉजी इज अ कर्स और अ ब्लेस. मतलब टेक्नोलॉजी आशीर्वाद है या फिर हमारे ऊपर कोई व्हाट वी कैन से अभिशाप है. तो टेक्नोलॉजी अभिशाप है ही नहीं अगर आप उनका यूज सही तरीके से कर रहे हो. टेक्नोलॉजी हमारे लिए हमेशा आशीर्वाद ही रहा है. तो उसके साथ इश्यूज भी खड़े हुए कितने सारे टेक्नोलॉजी के आने के साथ, जैसे कि इश्यूज लाइक फर्स्ट इश्यू इज पॉवर्टी, देन सेकेंड इश्यू इज कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन 2 countries, 2 states and many things. देन आफ्टर इनइक्वालिटी. आपको पता होगा टेक्नोलॉजी आने की वजह से जो लोग पढ़े लिखे हैं वो अच्छे से जॉब कर सकते हैं, अच्छे से पास आउट हो सकते हैं और अच्छे से ग्रो कर सकते हैं. लेकिन जो ऐसे बंदे हैं जो बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं और नहीं की है, उनको बहुत प्रॉब्लम होता है. तो इनइक्वालिटीज. देन आफ्टर, तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड दैट इज एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शंस. आपको पता होगा पहले जब हमें बॉम्बे जाना हो या कहीं भी फॉरेन जाना हो तो प्लेन की अवेलेबिलिटी बहुत कम थी, या फिर व्हीकल. इफ यू टॉक अबाउट व्हीकल, हमारे सिटी में आपने देखा होगा बड़ोड़ा में कि कितने सारे फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था. आप देखते होंगे पहले
बहुत कम लोग हुआ करते थे बड़ौदा में, अभी आप देखोगे तो हर जगह पे लोग ही लोग दिखाई देंगे। लोग ज्यादा बढ़ने से क्या होता है, लाइक टेक्नोलॉजी का यूज ज्यादा होता है। टेक्नोलॉजी ज्यादा बढ़ने से क्या होता है, लाइक व्हीकल्स, देन आफ्टर वाटर, एवरीथिंग वी विल यूज मोर एंड मोर एवरी डे, एंड देन आफ्टर causes environmental destruction, and at the last, as I told you, we are sucking out of earth, that is natural resources. हमने पूरा अर्थ में से पूरा आयरन है, फिर केमिकल्स है, गोल्ड है, सब कुछ खींच खींच के निकाल दिया है। और सारे जो इश्यू है आप जो देख रहे हो अभी स्क्रीन पे, दैट इज पॉवर्टी, कॉन्फ्लिक्ट, इनइक्वालिटी एंड नेचुरल रिसोर्सेज प्रॉब्लम, लीड्स टू दैट इज क्लाइमेट चेंज। अब देखते हो कि अभी जो ओजोन का लेयर है पूरा टूट चुका है। Or not only UN means United Nations, but also each and every country are facing the problem related to climate change. आपने शायद नोटिस किया होगा, before 10 years there will be no hotness like this. पहले इतनी गर्मी नहीं हुआ करती थी, लेकिन अभी आप देखोगे 12 बजे हमें पूरे पसीना छूट जाता है just because of climate change. So as a student, as a responsible citizen, or you can say as a global responsible citizen, what you can do, what you can contribute to country, what you can contribute to world, what you can contribute to this entire world, that I want to talk today. Let's move further. Okay, if you talk about this climate change, what do you think, guys? Is this the world that we want? No, right? Because we want world that is peaceful, that is loyal, that is completely safe and secure for each and every member of society. So for that, what we can do, because everywhere you are like finding out the seminars and then our webinars, then कहीं लोग रोड पे जाके कितने सारे नारे लगाते हैं, like stop violence, respect for all, then equality, woman is equal to man, freedom of expression and each and everything. But what do you think? Tell me guys honestly, सिर्फ नारे लगाने से या सिर्फ चिल्लाने से, सिर्फ बड़े बड़े फोटो न्यूज़पेपर में देने से या बड़े बड़े पोस्टर लगाने से ये हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है, लेट मी गिव यू वेरी ऑनेस्टली गाइस, कोई भी अगर आप निर्णय छोटा सा अगर आज लोगे, आज इस सेमिनार या वेबिनार के बाद अगर आप एक छोटा सा संकल्प करोगे आपके मन के अंदर कि सर मैं आज से ये करूंगा या फिर मैं आज से नहीं करूंगा। लेट मी गिव यू एग्जांपल। Like I have got married in 2015, and then after me and my wife just swear, हम लोगों ने कसम खाई कि हम कभी भी, मेरी बात ध्यान से सुनना, कभी भी कोई भी प्लास्टिक का जो कूड़ा है वो हम कहीं पे भी नहीं डालेंगे। यू डोंट बिलीव, 2015 से लेके 2020 तक मैंने एक भी अगर पानी का पाउच हो या बॉटल हो या कुछ भी हो, मैंने एक भी जगह पे नहीं डाला है, बिकॉज दिस इज माई एथिक्स। I just decided I will not throw it. अगर if you decide as per your ethics that will be benefit to society, then city, then country and then up to world. You think like क्या होता है यार, अगर फेंक दिया तो फेंक दिया, एक में से एक करेगा तो क्या फर्क पड़ेगा। शायद आपको जानकर खुशी होगी, बूंद बूंद से ही पूरा सागर बनता है। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप of changing the world in the positive sense. So we want peaceful world. So let's guys, decide today like what we gonna do in further. Okay, the question is how. I gave you example like what I have decided, but my question is to you, like how we can do this, how we can make this earth or mother earth very beautiful as it was. We can do it by giving our small contribution to world, but how? Question is how. So let me give you some example, like as a student what you can do. For example, the first step is let's learn to live together. Because कभी कभी क्या होता है, हम पूरे हमारी कोई भी चीज की हमारी कोई जो पर्सनल चीज है या कोई भी हमारी पर्सनल मैटर है, उनकी वजह से हम पूरे दूसरों के बारे में कभी सोचते ही नहीं है। बट वी नीड टू, एज आई टोल्ड यू, रिस्पॉन्सिबल मीन्स who think beyond limitations, who think there is a world beyond us as well. In short, हमारे अलावा और भी लोग इस दुनिया में जी रहे हैं, वो सोचना ये भी एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो लर्न टू लिव टुगेदर।
तो फर्स्ट स्टेप, सबसे पहले आप फ्रेंड्स हो, आप कॉलेज में जाते हो, आप फैमिली मेंबर हो, कहीं पे आप लाइक स्टूडेंट हो, सभी जगह पे आपको एक माइंड में रखना है कि मैं जो भी कर रहा हूं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अवर कंट्री. वॉट एवर यू डू नेगेटिव थिंग्स, यू डू पॉजिटिव थिंग्स, वॉट एवर यू डू इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्टीमेट ग्रोथ ऑफ कंट्री. सो लेट्स लर्न टू लिव टुगेदर फर्स्ट ऑफ ऑल. So how you can become global responsible citizen as student? As I told you that Sonu Sood has come forward and helped many people. As I told you, Swami Vivekananda went to America at Chicago in 1893 and just spoke out between among 7,000 people, and he impressed entire world. आपको शायद पता होगा अमेरिका में और कितने सारे देशों में स्वामी विवेकानंद के नाम पे कितनी सारी रोड्स में बनाई हुई है और वहां पे कितनी सारी उनकी मूर्तियां भी है. आपने ये भी देखा होगा कि मोदी जी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है वो भी कितनी सारी चीजें पेंडेमिक के दरमियान बार बार टीवी पे आके हमें गाइड कर रहे थे और ज्यादा से ज्यादा लोगों सेफ रहे. उनकी उनकी यही हमेशा कोशिश रही है. लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ना तो हम सोनू सूद है, ना तो हम मोदी जी है, ना तो हम स्वामी विवेकानंद है, या ना तो हम लियोनार्डो डिकैप्रियो है. मैं ये नहीं कहना चाहता कि आप लोग बड़े पर्सन हो जाओ, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर एज ए स्टूडेंट if you follow some small steps that directly affect the country's growth or directly affect to the city or state growth, that will be very like thankful that you are doing this. And that is the first step you need to follow is realization of one's responsibility towards world. It means अगर आप घर पे हो, कई बार क्या होता है हमारा जो घर है वहां पे कोई छोटा मोटा जो कूड़ा है हमने पूरा निकाला और हमने क्या किया कि हमारे घर में हम नहीं फेंकेंगे, हम पूरे अपने जो वॉल है वहां पे जाके और बाहर फेंक देंगे. तो इट्स ऑल्सो वन टाइप ऑफ like you can say irresponsible. If you are responsible, you need to throw into dustbin. और अब देखा ही होगा कि हमारे सोसाइटी में जो उनकी वैन आती है हम उसमें डाले. It's a very small step but very important. Then after society, then after state and country, and at the end of that world. अगर एक बंदा या जितने भी बंदे अभी मेरे जो वेबिनार है वो अटेंड कर रहे हैं उनमें से 5% सिर्फ ये फॉलो करेंगे तो अभी मैं आपको गारंटी देता हूं कि चेंज आएगा. गांधी जी बोलते थे बी द चेंज दैट यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड. अब जो भी बदलाव लाना चाहते हो वो आप खुद बन जाओ. बोलते हैं ना, एक बार किसी लीडर ने पूछा कि वो वांट चेंज, देन एवरीबॉडी रेज्ड हैंड. हम चाहते हैं चेंज, हम चाहते हैं. हम कई बार बोलते हैं कॉलेज में ऐसा नहीं होना चाहिए, कॉलेज में वैसा नहीं होना चाहिए, यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए, ये पूरी गलत बात है, ये होना वो होना. लेकिन जब भी आता है वो वांट्स टू चेंज, मतलब कौन बदलना चाहता है खुद को, तो सारे के सारे पीछे हट जाते हैं. अगर इसका आंसर है यस सर आई वांट टू चेंज, आई विल ब्रिंग चेंज, आई विल ब्रिंग चेंज टुवर्ड्स वर्ल्ड, देन आफ्टर दिस विल बी और जो भी हमने आज किया है वो उनका कुछ हमें रिजल्ट मिलेगा. तो फर्स्ट इज रियलाइजेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स वर्ल्ड. देन आफ्टर एज ए स्टूडेंट यू कैन डू very simple, very easy to do, that is attending college regularly and follow Parul campus rules. मुझे नहीं पता है पारुल कैंपस रूल्स में क्या क्या आते हैं, लेकिन मुझे इतना पता है कि जो बेसिक्स रूल्स है वो सभी कॉलेज में सेम ही रहते हैं. जैसे कि अटेंडिंग कॉलेज, रिस्पेक्टिंग लेक्चरर्स, रिस्पेक्टिंग एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ्स, रिस्पेक्टिंग लोअर लेवल स्टाफ. फॉर एग्जांपल गार्ड है, देन आफ्टर प्रिंसिपल है, देन आफ्टर यू कैन से लाइक जो भी बंदा है जो यहाँ वहां पे साफ सफाई करने आता है उन सबको आप रिस्पेक्ट करो. जैसे कि अगर आप कॉलेज में एंटर हो रहे हो, वहां पे गार्ड बैठा है तो उनको हाय हेलो बोलो. देखो हाय हेलो बोलो में आपका कुछ नहीं जाने वाला है, सिर्फ उनको बोलो हेलो अंकल. अगर आप गुजराती हो तो आप लाइक जय श्री कृष्ण और वट एवर यू कैन से. अगर आप हिंदी भाषी हो तो हिंदी में भी आप विश कर सकते हो हाय हेलो. वेरी स्मॉल थिंग बट इट विल ब्रिंग वेरी बिग चेंज. देन आफ्टर अगर आप कॉलेज में एंटर हुए, क्लास में बैठ गए, फिर आप शांति से लेक्चर अटेंड करो. आपको कोई भी क्वेश्चन है 10 बार पूछो, लेकिन खामखा डिस्टर्बेंस ना खड़ा करो. फिर देन आफ्टर रिस्पेक्टिंग गर्ल्स, देन आफ्टर यू कैन से कॉलेज में जहां पे भी आप बैठते हो
नाश्ता करते हो, एंजॉय करते हो, फ्रेंड के साथ मस्ती करते हो, वहां पे इतनी भी मस्ती मत करो कि किसी का नुकसान हो जाए. तो दिस इज ऑल्सो स्मॉल स्टेप बट वेरी इंपॉर्टेंट टुवर्ड्स सोसाइटी. नेक्स्ट टॉपिक इज obeying laws and save environment. आपने कहीं बार देखा होगा, कहीं जगहों पे देखा होगा, स्वच्छता अभियान बाय मोदी जी, स्वच्छता अभियान बाय गांधी जी, हमारा शहर वडोदरा शहर स्वच्छ शहर. आपने कहीं कहीं बार पढ़ा होगा ग्रीन वडोदरा स्वच्छ वडोदरा. ऐसा कहीं बार हमने पढ़ा है, देखा है, सुना है. लेकिन आप अपने आप से क्वेश्चन पूछो, क्या वाकई में हम फॉलो करते हैं? नो, राइट? But I don't want you to change rapidly or drastically right now. No, guys. I want you to change little bit today, not too much. बोलते हैं ना, रीडिंग करना है, एक साथ 10 चैप्टर नहीं हो सकते, लेकिन एक साथ 1 घंटे में आप एक टॉपिक तो पूरा कर ही सकते हो. तो इसी तरह से हमें एनवायरमेंट का जो क्लाइमेट चेंज हुआ है उनको वापस से अच्छा बनाना है. तो छोटा छोटा बूंद भी बड़ा सागर को बना सकता है. इसी तरह से आज हम लोग ट्राई करेंगे ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करने की, स्वच्छता अभियान को फॉलो करने की. अगर इफ यू आर ड्राइविंग योर स्कूटर और बाइक, देन डोंट ड्राइव अबव सम स्पीड. टेक केयर ऑफ एजेड पीपल, टेक केयर ऑफ चिल्ड्रन हु आर वॉकिंग टुवर्ड्स रोड, एंड ऑल्सो फॉलो द रूल्स which are guided by traffic police. Sometimes what happens, you are in the hurry, then you drive like crazy, you are driving like John Abraham of Doom. No, guys, you need to take care of each and every rules that is that is given by you can say government. So next topic is, yes, be kind, smile and respect every occupation or one that is. यहां पे मैं ये कहना चाहता हूं, जैसे मैंने अभी पहले भी बोला था, जितने भी लोग हैं हमारे आजू बाजू, जैसे कि पुलिस है, डॉक्टर्स है. अभी पुलिस और डॉक्टर मैंने इसलिए पहले लिखा है, आप जानते ही होंगे कि पेंडेमिक अभी चल रहा है, या फिर जब भी चल रहा था, तब जब लॉकडाउन हुआ था, तब पुलिस और डॉक्टर ने खुद की फैमिली के बारे में ना सोचते हुए पूरे कंट्री की सेवा की है. उनको हम बोलते थे कोरोना वॉरियर्स. बट उनके साथ भी और भी वॉरियर्स है, या और भी बंदे हैं, जैसे कि पेरेंट्स, देन टीचर्स, then you can say college lecturers और हमारे friends भी even. So you need to be polite, you need to be kind, you need to smile every day and you need to be excited. आपने देखा होगा, जो बंदा स्माइल करता है, जो बंदा लॉयल है, ऑनेस्ट है, उनके बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं. क्यों? क्योंकि everyone likes to be with good people. So another thing is, sometimes what happens, like here, don't just make me take me wrong, like obeying laws or becoming kind means not only helping others, but also if you are walking towards walking along the road, वहां पे कितनी सारी ऐसी चीजें होती है जो गवर्नमेंट ने बनाई होती है, जैसे कि गार्डन्स है, जैसे कि रोड पे कई जगह पे आपने देखा होगा पॉट्स लगाए होते हैं. अगर आप कहीं घूमने जाओ तो वहां पे अच्छे अच्छे हेरिटेज साइट्स होते हैं. तो कई बार मैंने देखा है, मैंने अपनी आंखों से देखा है, कुछ लोग क्या करते हैं, स्पेशली जो स्टूडेंट्स है, आई एम वेरी सॉरी टू से दैट बट इट्स इम्पोर्टेंट, वहां पे अपने हाथों से कुछ लाइक व्हाट वी कैन से कुछ वर्ड्स लिखते हैं, जैसे कि अपना नाम पूरा पत्थर पे लिख दिया, अपना नाम पूरा ट्री पे लाइक ग्रुप डाला. देन आफ्टर कुछ लोग क्या करते हैं, जो पॉट से उनको नुकसान करते हैं, या फिर जो भी ट्रीज वगैरह है उनको कुछ नुकसान करते हैं. Don't do, guys, because ultimately we are giving tax and that is used by government for every citizen of India. So मैं चाहता हूं कि आप लोग आज से ऐसा अपने आप को, मुझे नहीं, पारुल यूनिवर्सिटी को नहीं, अपने पेरेंट्स को नहीं, लेकिन खुद को ऐसा वादा कीजिए कि मैं अगली बार ध्यान रखूंगा कि मेरी वजह से कोई भी जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उनको कोई नुकसान ना हो, क्योंकि इट्स ऑल्सो अ पार्ट ऑफ global responsible citizen. That's we gonna talk each and every time, because our punchline is sharing is caring. Next, and that is respect different cultures and government and also others' property. That already I have covered. So that is the topic.
which I covered as well. Then after help always elderly when you come across. Here I just mentioned elderly, but also I want to add or respect young people as well. अगर आप अभी डिप्लोमा स्टूडेंट्स हो तो आपसे छोटे बच्चे भी आपके साथ पढ़ते होंगे, आपको मिलते होंगे, जैसे कि 10th वाले हैं, 8th वाले हैं या 5th वाले हैं। जब भी आप उनके सामने आओ, उनके साथ कोई भी बातचीत हो तो उनको भी रिस्पेक्ट कीजिए। एल्डरली पीपल अगर रोड पे आपको मिल जाए, अगर उनको कोई हेल्प चाहिए तो उनको हेल्प करो। आपकी छोटी सी हेल्प से आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन एल्डर जो पर्सन है उनको बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बंदा एजर है, वो रोड पे खड़ा है और आपको पता है कि उनको एक साइड से दूसरी साइड जाना हो, तो प्लीज हेल्प इट आउट। इट्स वेरी कॉमन, बट व्हाट आई वांट टू से इज, अगर बंदा स्कूटर लेके जा रहा है, लेट्स से हिज और हर एज इज 60 और 70 प्लस, तो समटाइम्स क्या होता है, जब भी वो बाइक या स्कूटर चलाते हैं तो कभी कभी एक्सीडेंट में वो गिर जाते हैं। तो मैंने ऐसे बंदे देखे हैं जो उन पे हंसते हैं या वहां से गाड़ी पूरा निकल जाते हैं, लेकिन एट दैट मोमेंट यू नीड टू स्टॉप, यू नीड टू गो देयर, नो मैटर व्हाट, लाइक हाउ मच यू आर बिजी, बट जस्ट स्पेंड 5 मिनट टू हेल्प दैट एल्डर पर्सन। गो देयर, लाइक आस्क देम, आपको कुछ लगा तो नहीं, आपको कोई हेल्प चाहिए, आपको हॉस्पिटल जाना है या कुछ भी, उनको अगर घर पे जाना है तो उनको छोड़ के आओ। आपको शायद जान के ये हैरानी होगी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हमारे लोखंडी पुरुष कहा जाता है, उन्होंने भी, आपको शायद हमने पढ़ा होगा कि जब वो छोटे बच्चे थे तो बीच रास्ते में एक पत्थर था, वो निकालने के लिए उनको पैर में लग गया था, फिर भी उन्होंने निकाला था और लेट पहुंचे थे स्कूल में। और देन आफ्टर ही told each and everything about that particular story, and then after he became the legend of India. So छोटी सी जो चीज है वो भी आपको कभी लीजेंड बना सकती है। मैं ये नहीं बोलता कि आप लोग मोदी बन जाओ या आप लोग सोनू सूद बन जाओ, अगर छोटी छोटी चीजें करोगे तो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी बढ़ेगी। तो आगे चलते हैं गाइस। Then after it comes, keep away from bad habits. Very 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 important. मैंने एक बार पढ़ा था एक बुक में कि आपके सिर्फ 5 दोस्तों का मुझे नाम बताओ और मैं बता दूंगा कि आप किस टाइप के बंदे हो, बिकॉज यू आर द पर्सन ऑफ एवरेज पीपल ऑफ 5 दैट यू स्पेंड योर टाइम। मतलब आप वही लोग हो या वही बंदे हो जिसके साथ आप अपना टाइम बिताते हो, वही आप बन जाते हो। हमारे गुजराती में कहावत है ना, लाइक कालिया साथे धोळियो बांधो तो वान नहीं पण शान आवे। इट मीन्स आप जिसके साथ रहते हो आप उनके जैसे बन जाओगे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे लिखा ही है, अर्जुन जो महाभारत का एक बहुत अच्छा कैरेक्टर है, वो उनके जो फ्रेंड है वो है कृष्णा। अर्जुन को जब कृष्णा मिलने आए महाभारत के पहले और कृष्णा ने पूछा कि तुझे क्या चाहिए, तुझे मैं चाहिए या पूरी सेना चाहिए, तो अर्जुन ने झुक के उनके पैर पे पड़ के और बोला था कि भगवान मुझे आप ही चाहिए, मुझे आप सखना चाहिए, मुझे कोई सेना नहीं चाहिए। क्योंकि उनको पता था कि सेना से अच्छा है या फिर सेना से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है, वो है मेरा मित्र कृष्ण। इसलिए इन्होंने चुना कृष्ण को। और जब कृष्णा दुर्योधन के पास गए और दुर्योधन को पूछा कि तुझे क्या चाहिए, सेना चाहिए या कृष्णा चाहिए, तो दुर्योधन हंसते हुए बोला कि मुझे तुम नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ सेना चाहिए। और आप देख सकते हो एंड ऑफ द महाभारत क्या होता है, अर्जुन विंस सिंपली। सो बी विद द राइट पीपल, बी विद दोज पीपल हु आर हेल्पिंग यू टू ग्रो एवरी डे, because your friendship is very important, but with whom we are doing friendship is also very important. Okay, then example, I would like to share one example also, recent example, everyone knows about that is Sushant Singh. आप सब लोग जानते हो कि बिफोर फ्यू मंथ्स सुशांत सिंह जस्ट डिड सुसाइड, राइट? व्हाई? यू नो एवरीथिंग, बिकॉज उनके जो आगे पीछे जो बंदे थे या उनके जो फ्रेंड्स थे या जो भी था, वो समहाउ उनको कहीं पे अफेक्ट हो गया और ही डिड दिस स्टेप। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट नेगेटिव थिंग्स, आई एम टॉकिंग अबाउट द राइट पीपल। बी विद द राइट पीपल हु हेल्प्स यू। अनदर एग्जांपल आई आल्सो नोटिस्ड, दैट इज संजू फिल्म्स। आपने देखा होगा संजू फिल्म में जो
संजू का जो किरदार रणबीर कपूर ने निभाया है, उनके दो फ्रेंड्स थे, एक वो जो रमेश था जो गुजराती था, और दूसरा था जो उनको ड्रग सप्लाई करता था। तो आपको ऐसे बंदे के साथ रहना है जो आपको आपकी लाइफ में ग्रो करने में, आपको आगे बढ़ने में, आपको एजुकेशनल वाइज, आपको सोसाइटी वाइज, आपको कंट्री रिस्पॉन्सिबल पर्सन वाइज जो आगे बढ़ने में हेल्प करे। नेक्स्ट, that is donate your old clothes, books or toys to poor. Again I am repeating the line that is sharing is caring. अगर आप ऐसे बंदे हो जिसके पास ज्यादा टॉयज है, ज्यादा क्लोथ्स है या बुक्स है, तो अगर आपके घर में वो चीजें ऐसे ही पड़ी रहती है, then please guys donate to those people who are in need. बिकॉज आपके लिए वो कुछ भी नहीं है, लेकिन जिनके पास नहीं है उनके लिए वो बहुत कुछ है। लेट मी गिव यू वेरी ब्यूटीफुल एग्जांपल। I have almost 10 to 8 shirts and 10 to 8 pants which I am not using. You can say मुझे आ भी नहीं रहे थे क्योंकि मैं मोटा हो गया हूँ after this pandemic corona. So I am just kidding you guys. मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो भी ये 20 शर्ट्स और पैंट्स है वो मेरे जो कपड़े है उनमें ऐसे ही पड़े रहते थे। Then after I thought why should I not give to poor people. जब भी मैंने वो कपड़े लिए और बैग पैक करके मैं देने गया, जिसको मैंने हाथ में दिया वो बंदा मुझे ऐसा बोला कि सर थैंक यू सो मच दैट यू केम टू अवर होम, यू हेल्प इट आउट, बिकॉज सर पिछले 6 मंथ से हमारी 1 भी रुपए की इनकम नहीं हुई है और इसकी वजह से सर मेरे पास पहनने को कपड़े भी नहीं रहे थे। आप आए तो मेरा तो हो गया, लेकिन मेरे जो फ्रेंड्स है, मेरे फैमिली मेंबर्स है, उनको हेल्प हो जाएगी। अभी आप सोचो, मेरा कुछ नहीं गया, मैं तो ऐसे ही दे देने वाला था किसी को भी या फेंक देने वाला था, लेकिन जिसको मैंने दिया उसको बहुत कुछ हो गया। तो प्लीज गाइज, आपके घर में जो भी है, बुक्स है, टॉयज है, क्लोथ्स है, या जो भी ऐसी चीज है, आज घर पे जाके देखो या आजू बाजू देखो ऐसी कौन सी चीज है कि जो मैं किसी को देके, देखो जब भी आप देते हो ना तो देने की खुशी पाने से बहुत बड़ी होती है। तो दो और भूल जाओ। नेक्स्ट, एंड दैट इज द लास्ट टॉपिक, बी अवेयर ऑफ योर राइट्स एंड व्हाट इज हैपनिंग अराउंड यू। अभी आप छोटे हो, स्टूडेंट्स हो, फिर भी मैं आपको बोल रहा हूं, आप अपने राइट्स जानो, आपके आजू बाजू क्या हो रहा है वो भी जानो। हो सके तो डेली न्यूज़पेपर पढ़ो, हो सके तो आपकी जो एजड पीपल घर में है, आपके दादा है, आपकी दादी है या आपके पेरेंट्स है, उनको पूछो लाइक व्हाट इज द न्यूज ऑफ द डे, what are the what is the country doing or what Modi is doing। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ आपको पॉलिटिक्स में जाना है, मैं ऐसा बोल रहा हूँ जो भी आजू बाजू हो रहा है, चाहे वो स्पोर्ट्स का हो, चाहे वो पॉलिटिकल का हो, चाहे वो बॉलीवुड का भी हो, क्योंकि मैं ज्यादातर जब भी मैं स्टूडेंट्स का वेबिनार लेता हूँ तो उसमें बॉलीवुड में घुसाता हूँ, क्योंकि बॉलीवुड एक ऐसी चीज है जो सारे बच्चों को अच्छी लगती है। So that's why I am giving you example of Sanju, then after Sonu Sood and everybody. So know about what is happening currently. Okay guys, let's move ahead. These are the topics which may help you to become a global responsible citizen and which may help you out to become to grow as a social responsible citizen. Just a minute guys. Okay, everyone is getting my voice, right? Yes, sir. Okay. Just a minute, because there are some technical issue. I am again come to the point. Just a minute. Okay, so we are talking about as a student what you can do as a global responsible citizen. Sorry for technical issues. Okay, we are moving ahead, and the last slide for you guys is that I just represented some examples which may help you as a diploma student, contribution to the world by diploma student as a global responsible citizen. मैंने पहले बड़े लोगों की बात की,
फिर कुछ ऐसे छोटे एग्जांपल आपको दिए, फिर मैंने आपको एज ए स्टूडेंट आप क्या कर सकते हो वो भी मैंने आपको बताया। अभी मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ डिप्लोमा स्टूडेंट क्या कर सकते हैं। अभी आपने अपने करियर की शुरुआत की है, लेकिन आगे जाके आप मास्टर बनोगे, आप कहीं पे लाइक जॉब करोगे, बिजनेस करोगे, तो क्या कर सकते हो। उनके 2-3 मैंने लाइक एग्जांपल लिए हैं जिससे आपको आइडिया आ सके आप क्या कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अभी अभी रिसेंटली एक इंडियन फर्म है, आई डिडंट नोटिस द नेम, वन अवार्ड इन सिंगापुर फॉर क्लीनिंग गंगा इन वाराणसी। एक ऐसी फर्म है जो क्या करती थी, गंगा जो है वाराणसी में, उनके आजू बाजू का जो एरियाज है, गंगा खुद जो पानी है उनको साफ सफाई करती थी। एंड ट्रीटिंग सीवेज मीन्स जो भी गंदा कचरा था, कूड़ा था, उनको साफ सफाई करके उनका भी रीयूज करते थे वो लोग। सो आई एम टॉकिंग अबाउट इट्स ऑल अबाउट प्रेस्टिजियस एनवायरमेंटल अवार्ड। दैट अवार्ड इज prestigious environmental award which Indian firm has got from the Singapore. So believe guys that what we are, because सारे के सारे जो भी इंटेलिजेंस बंदे हैं वो इंडिया के ही है। जीरो किसने दिया? इंडिया ने दिया। वर्ल्ड को शुगर किसने दी? इंडिया ने दी। वर्ल्ड को मरी मसाले किसने दिए? इंडिया ने दिए। तो इट्स प्राउड मोमेंट गाइस टू बी इंडियन। वी आर इंडियन बॉस, वी आर इंटेलिजेंस बाय बॉर्न, सो नो वरीज अबाउट दैट। Just think about it, what you can do as a diploma student. Then after I also mention another example, that is Delhi-based Chakra Innovation cleans air and pollutants converts into ink and paint. It means एक फर्म है जिसका नाम है चक्र इनोवेशन। व्हाट दे आर डूइंग, आप जब भी कार चलाते हो, आप बाइक चलाते हो, तो उनके पीछे से धुआं निकलता है। वो धुआं कैसा होता है? पूरा कार्बन डाइऑक्साइड का, और वो जो पूरा ब्लैक होता है, उनकी वजह से ओजोन का जो लेयर है वो पूरा टूट चुका है। आप जानते हो सब कुछ। तो वो लोग क्या करते हैं, वो जो धुआं है उनको इकट्ठा करते हैं, इकट्ठा करके जो ब्लैक कार्बन डाइऑक्साइड, उनका यूज वो लोग इंक बनाने में करते हैं। सोचो, जो वेस्टेज है पूरा, उनका पूरा पॉजिटिव यूज किया, और साथ में ही उनकी ब्लैक कलर की इंक भी बनाते हैं या फिर पेंट भी बनाते हैं, जैसे वी कैन यूज इन आवर होम्स एंड सोसाइटीज। So this is all about like diploma student क्या करते हैं, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिक हो, या any students of the diploma that can do innovations like anything, okay, and that is innovating engineering because diploma student needs to do it. Then after last example is Aditya Birla Group has built first ever solar ferry which use a solar energy and then after carries the 75 people in its ferry. मतलब ना तो उसमें हमें पेट्रोल चाहिए, ना तो हमें डीजल चाहिए, या ना कुछ भी चाहिए। तो आदित्य बिरला ग्रुप ने ऐसी फेरी बनाई है जो 75 बंदे को कैरी कर सकती है विदाउट वेस्टिंग 1 रुपी इवन। So this is what power of diploma students. So guys, I want to talk to you about solar roof. Like solar roof जो है उनका भी आप यूज कर सकते हो। आपने देखा होगा अभी गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है। गवर्नमेंट आप अगर 50,000 की लेते हो तो आपको 30,000 भरने हैं, 20,000 गवर्नमेंट देगी। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट भी चाहती है कि आप रिस्पॉन्सिबल बनो टुवर्ड्स योर सोसाइटी, टुवर्ड्स कंट्री, एज वेल एज दिस ब्यूटीफुल मदर अर्थ। एंड द लास्ट वन इज who are the global citizens? The global citizens are, in short, we can say that who values justice, who believes in diversity and respect equality, and the last topic is bring positive changes towards society. So guys, let me conclude it. The role of education is to empower young people to become active global citizens, are able to contribute to building more just, peaceful and sustainable society. ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये यूनेस्को कह रहा है कि एजुकेशन का एक ही मकसद है कि आप लोग सोसाइटी की तरफ what we can say, you contribute yourself as a positive person, you contribute as a sustainable society. जो भी मदर अर्थ ने हमें दिया था उससे बेटर बना के हम मदर अर्थ को जो वापस करेंगे। क्योंकि अभी आप जैसे कि 18 साल के हो या 20 साल के हो, आज से 200 साल या 2000 साल बाद जब बच्चे होंगे वो बोलेंगे कि नहीं, हमारी जो पुश्तें थी वो कुछ करके गई है, आज इसलिए हम अभी अच्छे से जी पा रहे हैं। एंड दैट विल बी द पॉइंट वेयर दिस वेबिनार विल बी वेरी फ्रूटफुल। लेकिन उनका उल्टा भी हो सकता है, क्योंकि अगर हम लोग ध्यान नहीं रखेंगे तो कल जाके पेट्रोल खाली हो जाएगा, कल जाके वाटर जो मीठा वाटर है वो पूरा खाली हो जाएगा, सारे नेचुरल रिसोर्सेज है पूरे खत्म हो जाएंगे, एंड इट विल बी बिग इश्यू। तो इट्स ऑल अबाउट यू एंड मी, नॉट जस्ट यू बट ऑल्सो मी,
we all of like we all can do together with the small drop. Your so one small step can bring big contribution towards world. And at last, I want to thank everyone who gave today your valuable time, who gave their precious time as well. Thank you, Power University. Thank you, Mrs. Survey, and thank you each and everyone who supported me directly or indirectly. At the last of webinar, I want to tell you thank you so much, guys. I really have enjoyed today, and let's hope if I get chance to come Power University, I will come there and we will discuss more about this and also another topic as well. Thank you so much. At last, I want to ask you whatever questions you have in your mind, whatever doubt you in your mind, you can ask. I'm giving you 5 minutes, and thereafter we will, stop it right now. So at last, I want to share. आप पढ़ ही रहे होगे अगर पूछ डाला तो लाइफ जीला लाला. Okay, guys. So any questions? Yes, Mrs. Surve, are you there? Yes, sir. Yeah. So any question if guys are having, they can ask. Okay, sir. Yeah. We are having 5 minutes, so they can ask. Okay, so any question? Anybody is there? या सब सो गए क्योंकि ज्यादातर वेबिनार होता है तो लोग सो जाते हैं. मैं भी लेक्चरर हूँ. कोई बात नहीं, कोई बंदा पूछ सकता है. Are you there, Power University student? Yes, sir. Yes, anybody can ask. If possible, Mrs. Survey, you can message them as well. If they are not asking, you can message them like they can reply as well. So, no Yeah. question, sir. But I would like to thank to provide such a valuable insight in today's session. We are enlightened to have you here and motivate every attendee with your inspirational thoughts, provoking words. थैंक यू वंस अगेन. एंड जैसे कि आज के विद्यार्थी हमारे देश का कल का भविष्य है. सो आपने जैसे नाइसली एक्सप्लेन किया स्मॉल एग्जांपल देके कि हम स्मॉल स्टेप में भी कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकते हैं और हमारे देश का ग्रोथ कर सकते हैं. जैसे कि फैमिली, एज अ फैमिली मेंबर, एज अ सोसाइटी, एज अ सिटीजन. ओके, सो पूरे वर्ल्ड का भी हम ऐसे ग्रोथ कर सकते हैं अगर एवरी स्टेप हम स्मॉल स्टेप से ही स्टार्ट करेंगे, तभी हमारी कंट्री का ग्रोथ हो सकता है. तो आपने बहुत नाइसली एक्सप्लेन किया सर. थैंक यू वंस अगेन. Yeah. It's my pleasure, my pleasure. And at last, if you don't mind, I want to share one thing as well. यस सर, श्योर सर. Yeah. I am just sharing on the screen. Guys, please keep your eyes on the screen. I am just sharing it right now. And that is Buddha quote. आपको शायद पता होगा जब बुद्ध भगवान ने अपना शरीर, अपना पार्थिव देह छोड़ा, तो उनके एक चेले थे, उनका फॉलोवर था, उनका नाम था आई गेस जीवन, ऐसा कुछ नाम था. उन्होंने लास्ट जो वर्ड है अपने मरते हुए जो बोला था वो था आत्म दीपो भव. इट मीन्स बी योर ओन लाइट. स्वयं को अपना दीपक बनाओ. इट मीन्स अगर आप स्वयं को ही अपनी लाइट बना दोगे तो पूरे वर्ल्ड में ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आपको सक्सेसफुल होने से रोक सके एंड जो आपको कोई भी चीज अच्छी करने से रोक सके. तो एट लास्ट आई वुड थैंक टू एवरीवन एंड प्लीज गाइस वॉट एवर आई टोल्ड टुडे फॉलो इट बाय योर हार्ट. थैंक यू सो मच. थैंक यू एवरीवन. थैंक यू सर. थैंक यू Yeah, thank you so much. Should I cut it down, right? Done.